بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ابھی ہم نے کے پی کے چیف منسٹر کی جلسے سے بننے میں خطاب سنی، تو وہی جو آپ پہلے کہہ رہے تھے، بہت افسوس ہوا کہ اس نے دوبارہ اس کو ایک امن کی ایشو کو دوبارہ سیاست میں لے کر جانا چاہا، اور اس میں کوئی نئی بات ہوئی نہیں۔ اس نے یہ اسی دن جو اپیکس کمیٹی میں بات چیت ہوئی، اور اپیکس کمیٹی میں صرف چیف منسٹر نہیں تھا، اسی میں عسکری قیادت بھی تھی اور کور کمانڈر پشاور بھی تھا، اور وہ ان کا اعلامیہ جو جاری ہوا ہے سب کے سامنے، اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ کوئی پہلے دن سے بھی یہ بات ہوئی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا، ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ سچ جو لوگوں کے ذہنوں میں آپریشن کا سوچ ہے، اس طرح کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے عام لوگوں کے ذہنوں میں، اور انہوں نے اس کو اسی طرح آپریشن قرار دیا جس طرح پہلے لوگ آئی ڈی پیز بنے اور اپنے ضلعوں اور جگہوں گھروں سے نکلے اور مختلف چیک پوسٹ اور مشکلات کا سامنا پڑ گیا۔ تو اس سے تو پہلے سے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا ہے، اور اپیکس کمیٹی میں بھی یہ بات ہو گئی کہ سچ اس طرح کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی اس نے وہی بات کی، تو اس طرح کوئی بات تو ہوئی ہی نہیں، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ یہ بات ہو گئی کہ پولیس پہلے کارروائی کرے گی، ایف سی کی ضرورت وہ کرے گی، اور جب آرمی کی ضرورت ہو تو پھر وہ آئے گی، اور خاص کر جو بارڈرز پر علاقے ہیں جہاں پولیس کی رسائی نہیں ہے تو اس میں آرمی مدد کرے گا، یہ بات ہوئی۔ اور یہ کوئی نئی بات ہوئی نہیں، میں اس پر سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو نیشنل ایکشن پلان، اس کا جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا اور پوری قوم اکٹھی ہوئی نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اور اس میں ہر ایک پارٹی نے شرکت کی، اور یہ طے ہوا نیشنل ایکشن پلان کے بعد کہ اس طرح آپریشن لانچ کرنا ہے، اور جن جن جگہوں میں یہ مشکلات آ رہے ہیں تو ان کو ختم کرنا ہے پورے ملک میں۔ تو یہ تو وہی کنٹینیوٹی ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشن، اور ان علاقوں میں جہاں یہ مشکلات سامنے آ رہے ہیں ان علاقوں میں چل رہے، کوئی نئی بات تو آئی نہیں۔ میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہی اتنے بڑے بڑے باتیں کرنا، اور اتنی کہ بس ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اینٹ کا اینٹ بجائیں گے، اصلاح کریں گے، تو اس طرح یہ قوم کو گمراہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے، اس طرح بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو اسی دن ایپکس کمیٹی میں ہوئی، آپ بتائے کہ کون سی نئی بات اس میں آ گئی؟ وہی بات ہو گئی کہ پولیس کارروائی کرے گی، پھر اگر ایف سی کی ضرورت وہ کرے گی، اور پھر اگر فوج کی ضرورت ہوئی وہ کرے گی۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، اس کی دوسری بات مجھے حیرت ہوئی، پہلے تو یہ اس کا جواب دے رہے کہ پہلے آپریشن ہوئے، امریکہ سے ڈالر لیے گئے، اور اس طرح ہمارے خون پر اس پر، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، گورنمنٹ تو آپ کی تھی، تو پھر آپ نے لیڈرشپ تھے، آپ تو اس ٹائم چیف منسٹر بھی نہیں تھے، تو آپ نے جس نے آپ کو بتایا گیا کہ اس میں ڈالر ملتے ہیں، وہ اڈیالہ جیل سے بتایا گیا یا کسی اور جگہ سے، تو اس کی وضاحت کریں کہ امریکہ سے وہ ڈالر وہی جو اس کے بعد اے پی ایس کے واقعے کے بعد اور کتنے بے شمار آپریشن ہوئے، تو وہ ڈالر اگر مل گئے تو آپ کو پتا ہوگا، آپ کے چیف منسٹر کو پتا ہوگا، اس سے پہلے محمود خان تھا، اور اس سے پہلے پرویز خٹک تھا، اور وہی عمران خان سب کو لیڈ کرتا تھا۔ تو اس کی وضاحت ہم کو دینی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ سے ڈالر ملے اور اس لیے آپریشن ہو رہے ہیں، تو یہ تو آپریشن تو آپ کے دور میں ہوئے، تو آپ کے دور میں ہوئے تو ڈالر کدھر گئے اور کدھر رکھے گئے؟ اور مجھے یہ بھی سوال کہ یہ جو فوج کی بات آتی ہے تو اسی پر سیاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب بھی فوج آئی، پروونشل گورنمنٹ نے ریکوزیشن کی ہے، وہی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم سے حالات نہیں ہو سکتے، آپ آ جائے، تو میرے خیال میں ہر وقت اس چیز کو اس طرح متنازع بنانا اور اس کو درمیان میں لانا بالکل مناسب نہیں۔ دونوں میں جو واقعات ہوئے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ہے، اگر تاجر نکلے اس کو اسی طرح شکل میں کس نے تبدیل کیا؟ وہ یہ جوابات فوٹیج موجود ہے، ہر ایک چیز موجود ہے کہ اس میں کون سے کارکن گھس گئے اور کس نے یہ شکل بنا دی۔ اور یہ امن و امان کا تو آپ کا معاملہ ہے، اگر آپ کی تیسری دفعہ گورنمنٹ آ رہی ہے تو آپ نے کیوں وہی اپنی ریٹ قائم نہیں کری؟ کس نے آپ کے ہاتھ رکوائے؟ آپ کو تو وہ 1% بھی زیادہ مل رہا ہے، ابھی تک مل رہا ہے، تو اس پر آپ نے کون سا کام کیا؟ ہماری تو بدقسمت ہے کہ سی ٹی ڈی کا دفتر بھی نہیں بنا، ہیڈ کوارٹر بھی نہیں بنا، اس کی منظوری بھی
जो हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसी दौर में फिर शहबाज शरीफ साहब ने दी। तो आपको चाहिए कि इतने बड़े बड़े बातों की बजाय उस पर फोकस करें, उस पर तवज्जो दे दें, और वही आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की वही ठीक करना और लोगों की जान और माल की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उस पर कर क्या रहे हैं, वो तो आपके साथ कोई प्लान ही नहीं है। आगे एक तकरीर करके और चले जाते हैं, ये इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। तो इसी तरह ये बात पहले हो गई, हमसे लोग पूछे थे, मैंने पहले भी कहा था आपके सामने, अगर दहशतगर्दी की बात हो गई तो गंडापुर साहब पर तो अभी तक या उसके दूसरे साथियों पर एक अटैक नहीं हुआ। हम उनसे बहुत ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हुए, हमसे कौन ज्यादा कि 8 दफा पर हमले हुए, खुदकश धमाके फेस किए, बहुत से लोग हमारे साथ शहीद हो गए, और हमने हर वक्त इसके खिलाफ डट कर बात की है। ये किसी सियासी इशू नहीं है, किसी को कम मिलते हैं ज्यादा मिलते हैं, मगर हम सब की और कौम की और इसकी इशू है। तो आप इसी पर सियासत मेरे ख्याल में बिल्कुल चमकाने की जरूरत नहीं है कि आप जाकर इस तरह ऐलान करें जिस तरह आपने ये किया। ये तो वही एपिस कमेटी में जो बातें हुई है वही वही बात है, कोई नई बात तो हुई ही नहीं। तो इसे इस तरह बात करना या क्या मैसेज देना मेरे ख्याल में न सूबे की आवाम की बेहतरी में। आपने साथ साथ बात की, मैं तो सोच रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि करप्शन के खिलाफ ये करे वो करे, तो आप खुद मैं तो काफी टाइम सोच रहा था कि क्या बात हो रही है। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, वही केपीके में एक एक फर्द, एक एक बच्चे, एक एक से पूछे कि कौन कर रहा है और किस तरह कर रहा है और किस दौर में हुई। तो अल्लाह करे कि इस तरह हो, हम तो इसमें सारे साथ हैं कि इस तरह हो कि आप इसके सामने खड़े हो जाए। मगर कौन कर रहा है, कौन कर रहा है और किस तरह कर रहा है, मैं इसमें जाना, तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। और फिर उसे अमन जलसे से एक सियासी शो बनाना और वही इमरान खान के नारे लगाना, उस कौम के साथ मेरे ख्याल में भी इंसाफ नहीं, ज्यादती है। तो मैं ये रिकॉर्ड पर लाना चाहता था कि जो आज आपने की कोई बड़ा कारनामा नहीं किया है, वही जो एपिक्स कमेटी में उसी दिन बात हुई, वही बात हो गई और उसी पर सारे कायम दायम है, उसे अब आगे कोई बात नहीं। तो इसका इस तरह क्रेडिट लेना कि ये हुआ वो बात तो डे वन से हमने जब सुना, तो डे वन से हमसे भी जो लोग पूछ रहे थे, हम कह रहे थे कि ऐसा इस तरह कोई बात है ही नहीं। जो आपके जहन में ऑपरेशन के बारे में, इस तरह कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इंटेलिजेंस बेस हो रहा है। तो आप ये बताइए नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि जितने लोगों की जान और माल और सब कुछ आपके सामने है, जो कुछ हो रहा है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई हल नजर आता है वही बताओ। और हम भी कहते हैं कि पुलिस को कर लेना चाहिए सबसे पहले पहल, उनको अपना कायम कर लेना चाहिए। और जब भी जरूरत पड़े तो हर मुश्किल में अगर उनकी जरूरत ना हो, जब जल्जले आ जाए फिर हम उनको कॉल करते। अगर ये तो फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किसी जगह पे आ जाए, जल्जले आ जाए, इसमें फौज कहता है आप आ जाए हमें बचा ले। अगर सैलाब आते हैं, फ्लड आते हैं, हमने देखे 2010 में, 15-16 में, हर वक्त फिर उनको कहा करते हैं कि आ जाए आप हमारी मदद करें। अगर कोई दूसरा इशू है तो उसमें भी करते हैं। और वही जितने ऑपरेशन हुए हम इसके गवाह देख रहे हैं, और आप भी, कि पाकिस्तान की झंडा लहराना कोई आसान काम नहीं। उन इलाकों में दोबारा जहाँ से पाकिस्तान का झंडा भी खत्म हुआ था और उसमें दोबारा जितनी शहादतें दी है और कितने लोग इसमें शहीद हो गए, सिविलियन का भी बहुत लॉस हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और इन्फोर्सिंग एजेंसीज का भी बहुत नुकसान हुआ हो, पुलिस है, एफसी है या आर्मी है। तो हमें उनके साथ इजहारी यकजहती करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको दूसरी तरफ लेके जाए। तो ये मेरे बात मैंने उसकी बातें सुन ली, तो मैं मुनासिब समझता था कि उनने जो बातें की उसमें उसका हकीकत के साथ, ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसके उसी तकरीर में जलसे को कोई इस तरह बात नहीं कि कोई नई बात हुई, वही बातें जो पहले हुई उस एपेक्स कमेटी में जिसमें वो था, मौजूद था, उसमें भी ये बात हुई इस्लामाबाद में। फिर उसने कहा कि मैंने दस्तखत ही नहीं किए, तो दस्तखत कोई भी नहीं करता है, एक बात हो जाए वही बात होती है। और फिर पेशावर में जिसमें कोर कमांडर भी था, जिसमें जो बातें हुई वही बातें हुई और सबके सामने हम हम सारे, ये किसी इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये हमारी सारी कौम का इशू है। और अमन के लिए हमने पहले भी सबसे आगे थे और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी सबसे आगे होंगे। सिर्फ जबानी जमाखट से नहीं, अमली तौर उसके लिए जो भी जरूरत हो माजी में भी साथ दिए और इंशाल्लाह ताला फिर भी साथ देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर मकाम साहब ने बहुत तफसील के साथ रोशनी डाली जो आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलसे से बड़ा एक पुरजोश खिताब किया, और हम उनकी मुश्किलात को समझते हैं कि मीटिंग्स में आके ताउन की यकीन दहानी कराना और अवाम के सामने एक पोस्टर रखना उनकी जवाब तलबी होती है अडियाला के अंदर, तो उनको वहाँ भी जवाब देना होता है। तो वो क्लिप्स लेके जाते हैं, दिखाते हैं और मानी चेयरमैन पीटीआई को राजी करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ही अच्छा होता है जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की बात अमीर मकाम साहब ने की है। 8 दफ़ा इन पर दहशत गर्दों ने हमला किया, अल्लाह ताला ने इनकी जिंदगी लिखी हुई थी, तो ये तो दलेर आदमी है, खड़े होकर मुकाबला किया। आज तालिबान को जो वापस लाए हैं वो एक तरफ कहते हैं जी ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी हालात भी ठीक कर देंगे, तीसरा वो कहते हैं किसी को यहाँ पे गैर कानूनी जो है अपनी इजारादारी नहीं कायम करने देंगे। तो प्लान क्या है? प्लान लेके आए ना, बताएं कि जी ये सीटीडी डिपार्टमेंट है, ये हम एंटी टेररिज्म की जो है मुहिम चलाने जा रहे हैं। वो तो प्लान आपके पास नहीं है, और दहशतगर्दी आपके दौर में बढ़ी क्योंकि आप इनको वापस लेके आए दहशतगर्दों को, जिस तरह अमीर मकाम साहब ने बड़ी तफसील से बात की। तो क्या ही अच्छा होता आप जरा वजाहत कर देते कि जो अभी दरख्त काटे गए हैं, बहुत बड़ा स्कैंडल आया खैबर पख्तूनख्वा में, बटाग्राम में आपने दरख्त काटे और उसमें आपके महकमा जो है फॉरेस्ट का, जंगलात का महकमे के आपके ऑफिशियल जो है वो इन्वॉल्व थे, आपका मिनिस्टर इन्वॉल्व है। तो आप ये टिम्बर माफिया वहां पे ऑपरेट कर रहा है, क्या उसके लिए भी कोई इकदाम आपने किए? आवाम को आज बताया कि ये टिम्बर माफिया कहाँ से आया, क्या हो रहा है? दूसरा, एक बहुत बड़ा स्कैंडल केपीके में आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक इदारे के साथ इन्होंने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग का मुआहदा साइन किया एक जाली इदारे के साथ। उस पर जितने लोग मौजूद हैं उस इदारे के अंदर, उन तमाम की ना प्रॉपर कोई डिग्री है, ना इस फील्ड में कोई महारत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और ना ही उनके पास कोई ऐसा सेटअप मौजूद है जिसके तहत वो ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं। तो ये वो ट्रेनिंग हो रही है कि जिसका ना अवाम को फायदा होगा, ना वो बच्चे आगे कहीं पे उनको नौकरियां मिल सकेंगी, बल्कि जिनको ये करवा रहे हैं उनको नुकसान होगा कि उनको वो जाली सर्टिफिकेशन करवाई जा रही है। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये जो आपने मुआहदा साइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये जो आपने क्वांटम डिप्लोमा शुरू किया है एक नए इनिशिएटिव के तौर पे, हजारों स्टूडेंट्स को आप इसमें बेवकूफ बनाने जा रहे हैं। और हमने जो तहकीक की है, जितने लोग इस क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर से एफिलिएटेड हैं, इनकी कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है, और जो साहब इसको चला रहे हैं वो क्लेम करते हैं उनकी पीएचडी है एमआईटी से, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है एमआईटी के पास। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ये जो आप ये क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करवाने जा रहे हो, आपने मुआहदा साइन किया है, इसका कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, गैर कानूनी तौर पे आप ये कर रहे हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। तमाम लोग जो उस इदारे से एसोसिएटेड हैं उन्होंने सेल्फ अवॉर्डिंग डिग्रीज उनके पास हैं, जिन्होंने अपने आप को कन्फर्म किया अपने ही इदारे से। तो ये बड़ी ही अजीब बात है कि इतनी गैर संजीदगी, एक तरफ दरख्त काट रहे हैं, महकमा जंगलात दरख्त काट रहा है बटाग्राम में, दूसरा आप पेशावर में बैठ के ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं जिसका सिर पैर ही कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी तशवीशनाक बात है, और इस पर प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये किस बुनियाद पे दे दिया। तो ये जवाब है जो आपको आज देने चाहिए थे जलसे के अंदर। दूसरा, मैं जमात इस्लामी के धरने के हवाले से बात करूंगा। देखिए, जमात इस्लामी को परमिशन दी गई थी कि वो लियाकत बाग में ये धरना या जलसा करें, और इंतजामिया के साथ तमाम एसओपीज ये तय किए गए थे। और देखिए, ये कार्य सरकार और जो पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगियों के अंदर खलल है, आए रोज कोई ना कोई ग्रुप जो है वो एक सड़क ब्लॉक करता है और फिर पूरी ट्रैफिक जैम कई कई मील तक होती है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, रोजगार की तलाश में जो लोग निकलते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, जो परमिशन होती है, जो एसओपीज तय होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं कि वो परमिशन ग्रांट की जाती है कि इस जगह की हदूद तक आप जो है वो महदूद रहेंगे। तो ये लियाकत बाग वाला जो मामला तय हुआ था,
और SOPs तय हुए थे, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जो है वो समझ में नहीं आती। और देखिए, आप हमारे भाई हैं और मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी एज अ जमात, उनकी लीडरशिप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो मैं हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। और मैं समझता हूँ कि हाफिज नईम साहब एक बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़े दूरंदेश सियासतदान हैं, हमेशा दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं। तो बात यह है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा है इस मुल्क का, जो वज़ीर आज़म साहब जिसको चला रहे हैं, जिसमें FDR की डिजिटाइजेशन है, लूप होल्स को प्लग करना है, अरबों रुपए की लीकेज को रोकना है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके आना है, जो लाखों नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाया गया है, इसी सिस्टम के तहत बनाया गया है, उसके समरात सामने आ रहे हैं। उसके अलावा जो फिजिकल स्पेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो अभी 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है बिजली के बिलों की मद में, और 200 यूनिट वाले जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, उन सार्फिन को कि जो 200 यूनिट की प्रोटेक्टेड कैटेगरी में फॉल करते हैं या अनप्रोटेक्टेड में फॉल करते हैं, वो सब्सिडी उन सब लोगों के लिए है और उनकी बिजली के बिलों में कमी वाक़ई होगी। और वो डेवलपमेंट साइड का बजट काट के तो उसको पूरा किया गया है। इस दफ़ा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP बनाया गया, 200 अरब रुपए की कटौती की गई ताकि इजाफी टैक्सेस ना आवाम को देने पड़े। तो देखिए, होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा है जिसमें प्राइवेटाइजेशन है, आउटसोर्सिंग है, जिसके अंदर बड़ी तेजी से जो है वो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तमाम इस्लाहात किए जा रहे हैं, FBR से लेके तो प्राइवेटाइजेशन तक। और ये सब्सिडीज में भी जो इजाफा हुआ है बिजली की, ये इसीलिए किया गया है कि अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। तो क्या ही अच्छा होता कि आपके एक सेनेटर भी मौजूद हैं, इस पे बात करते, आके बैठ जाते। हम तो, हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो हम एक मुज़ाकराती टीम इस पर तश्कील देने को तैयार हैं और हम बातचीत करने को तैयार हैं। इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हमने आगे बढ़ना है, मिलजुल के बढ़ना है। तो हमारा तो एजेंडा है ही इस मुल्क के मसाइल को ख़त्म करना। हम जब 2018 में छोड़ के गए, 2018 से 22, मैं सिर्फ आपको फैक्ट एंड फिगर्स बता दूं और हकीकत में मबनी बता दूं। महंगाई 4% थी 2018 में, बिजली 8 रुपए फी यूनिट थी, आपकी जो शरह नमू है वो 6% के ऊपर थी। 4 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगाई और कर्जों के अंबार लगाए एक ऐसे शख्स ने जो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल करके एक बहुत बड़े ग्रुप को फायदा दे गया, जो तोशा खाना की घड़ियां बेच के अरबों रुपए घर ले गया, जो इतना नुकसान कर गया कि जिस चीज को उसने हाथ लगाया उसने तबाही की है। तो देखिए, बात यह है कि हमेशा बिगाड़ पैदा दूसरे करें और हम आके ठीक करें। तो इस वक्त बहुत संजीदगी से वज़ीर आज़म साहब 20-20 घंटे काम कर रहे हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा, मुआशी इस्लाहात का जो एजेंडा है वो उनकी अवलीन तरजीह है। तो हम तो चाहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करें इसके अंदर। आप एक मुदब्बिर शख्स हैं, आप बैठे हमारी रहनुमाई करें, हमें बताएं कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए। खुदा खुदा करके इस मुल्क को देखिए, डिफॉल्ट से बचाना बड़ा जान जोखों का काम था। बैठे बैठे आप तो उस प्रोसेस का पार्ट नहीं थे, मगर मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूं कि डिफॉल्ट के दहाने पर हम खड़े थे, लोग बातें कर रहे थे कि जी ये कल को फलां मुल्क बन जाएगा, यहाँ एयरलाइनें आना बंद हो जाएंगी, बैंकों के बाहर लाइनें लगी होंगी लोगों की कैश विड्रॉल्स के लिए, लूटमार होगी सड़कों के ऊपर, एयरलाइंस नहीं आएंगी, LCयां नहीं खुलेंगी। उस सिचुएशन को अल्लाह ताला के फजल से, उस रब की जात ने मदद की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम आज बैठे हैं और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। वरना तो IMF को लेटर लिखे जा रहे थे, IMF की डील को सैबोटाज किया जा रहा था। तो डिफॉल्ट से बचा तो उसके समरात क्या है, जो हम एक बुनियाद रख के गए थे। रुपए की कदर इतनी गैर मुस्तहकम थी कि कभी 300 कभी 320, जो बेचारे एक्सपोर्टर्स थे उनको समझ नहीं आती थी कि करें क्या और किस तरीके से इसको आगे लेके चलें। बाहर कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो गए थे, LCयां खुलना बंद हो गई थी। आज अल्लाह का शुक्र है, अगर रुपया मुस्तहकम हुआ है
तो उसकी बुनियाद पीडीएम के दौर में रखी गई कि डिफॉल्ट से बच गए, रुपया मुस्तहकम हो गया, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन में बड़ा अच्छा काम हुआ, उसमें आर्मी चीफ की बड़ी काबिज शामिल है, इंटरिम गवर्नमेंट ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया, जो बुनियाद पीडीएम दौर में रखी गई उसको आगे बढ़ाया। आज अल्लाह का शुक्र है कि रुपया भी मुस्तहकम है, महंगाई में कमी भी जो है पिछले साल के मुकाबले में 23% से 11% के ऊपर हम आए हैं, और बिजली पे भी सब्सिडी इस दफा दी है। तो बात यह है कि 20-20 घंटे जो काम हो रहा है और दोस्त ममालिक के साथ जो हमारे रवाबित बढ़े हैं, ताल्लुकात आगे बढ़े हैं और सरमायाकारी के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, तो उसमें बड़ी काविश है मौजूदा हुकूमत की। तो हम चाहते हैं कि आप भी इसमें हिस्सा डालें, आप बताएं। और IMF का मुआहदे की जो मैं जिक्र कर रहा था, देखिए ये बड़ी मुश्किल से मामलात को तय करके तो IMF का मुआहदा तय हुआ है, जिसमें अब आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी तेजी है और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड IT एक्सपोर्ट्स हुई इस मुल्क से। तो ये मामलात जो हैं इनके हल के लिए हुकूमत कोशां है और IMF के मुआहदे के होने से अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे IMF का आखिरी मुआहदा हो, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब अक्सर फरमाते हैं, मगर हमें जो फैसले किए हैं उसके तहत आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीफ की तरफ बढ़ना है। हमें इस बात का अदराक है, हमें इस बात का अंदाजा है। तो आप अगर रहनुमाई कर सकते हैं, यू मोर देन वेलकम, हम बैठने को तैयार हैं। मगर देखिए, आम शहरियों की जिंदगी को अजीरन बनाना ये तो कोई तरीका नहीं है। और सड़कें ब्लॉक करना, देखिए पहले ही दहशतगर्दी की एक लहर है जिससे हम निबरद आजमा हैं और उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पाक फौज के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, रेंजर्स कुर्बानियां दे रहे हैं, पाक फौज के अफसर शहीद हो रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि एक पुरअमन एनवायरनमेंट हो और आप ये जो एजिटेशन की सियासत है इससे हट के आप आए, बैठे हमारे साथ बात करें। तो उसके लिए आपकी जब रजामंदी का इजहार होगा तो हम हुकूमत की तरफ से अमीर मकाम साहब, मैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, ये 3 रुकनी कमेटी आपसे बैठ के बात करेगी, आपके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगी और जो रहनुमाइयाँ फरमाएंगे उस पर कोशिश की जाएगी कि आगे चला जाए। आपकी डिमांड जो भी हो, जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, जो इस्लाहात का एक एजेंडा है जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कानूनी तौर पे और बहुत सारे हमारे जो रिफॉर्म एजेंडा का पार्ट है उसको डिस्कस करना होगा। और देखिए ये बड़ा आसान होता है कि बहुत बड़ी डिमांड रख दी जाए। अब अमल दरामद का जब मामला है उस पर हुकूमत के जो मामलात हैं, IMF का मुआहदा तय है, हमने बजट पास किया है, तो उसके तहत आपके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, एक अच्छे माहौल में मामला फहमी के साथ और तहम्मुल के साथ मामलात को आगे लेके चलेंगे। मगर मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जो आपको परमिशन दी गई थी लियाकत बाग की, आप उस पर ही जो है वो इत्तफा करें। और ये जगह जगह पर धरने, इससे शहरियों की जिंदगी जो है मुश्किल होगी, लोगों को मुश्किलात का सामना होगा, जो लोग अपने रोजगार के लिए निकलते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो मेरी गुजारिश है कि इन मामलात को मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की मफाद में पुरअमन आप अपना जलसा करें लियाकत बाग के अंदर, और हुकूमती टीम जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो है वो तैयार है। तो जब भी आपको अंदिया देंगे तो हम आपके साथ बैठ जाएं। खालिद साहब, जो क्लियर वायलेशन हो रही है जलसे जुलूसों की, डी चौक में आने की कोशिश हो रही है, अभी कुछ देर पहले भी यहाँ पे हंगामा रही थी। क्या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात डी चौक में होंगे या लियाकत बाग में होंगे? कहाँ तक उनको कायल किया जा सकता है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये डी चौक वाला मामला, ये किसी सूरत भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि हसास तनसीबात है। कोई तखरीबकार घुस आए और वो अमन मान को नुकसान पहुंचाए, और यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग्स हैं, कार्य सरकार है, उसमें मुदाखलत जो है वो देखें किसी सूरत भी उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लियाकत बाग में सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे, बाकी भी आपको सहूलत देंगे, मगर ये डी चौक वाला जो रिवाज है इसको खत्म होना चाहिए। बेहतर ना होता कि जाने से पहले उनसे बात तय की जाती थी, कम से कम आप उधर ही दें, क्योंकि पहले से ये था कि वो उन्होंने कहा था कि हम इस्लामाबाद है और ये कंटेनर ना होते लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। मेट्रो बस जो है वो सुबह से बंद है। मेट्रो बस पिछली दफा जल भी गई थी ना, हमें ये भी खदशा रहता है
पिछली बार आपको याद है कि यहाँ आग भी लग गई थी। तो हम तो चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से ये मामलात हल हो, और जो पिंडी की इंतजामिया की उनसे बात हुई थी सीपीओ की, वो यही थी कि लियाकत बाग तक आपको परमिशन है। अब उस पे अगर उन्होंने इस्लामाबाद आने पर इंतजार करना ही था तो उस पे कोई बातचीत कर लेते इंतजामिया से, कोई इंतजामिया को कहते कि जी ये एसओपीज ठीक नहीं है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर लें। मगर ये जगह जगह सड़कें ब्लॉक करना जिससे लोगों का जो है वो जरिया माश जो है वो मुतासर हो, वो लोगों के रोजगार में जो है वो खलल पड़े और लोगों को दिक्कत हो, ये तो मुनासिब नहीं है। देखिए डी चौक के अंदर एंट्री जो है वो आपको पता है खुली रहती है, डी चौक मुकम्मल तौर पे सील नहीं है, डी चौक के कुछ एंट्री पॉइंट बिल्कुल बंद है, मगर वो एक एंट्री जो खुली है उसका आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है, इस्लामाबाद के रहने वालों को पता है कि डी चौक में एंटर जो है वो कहाँ से, उन्हें रेड जोन में एंट्री कहाँ से है। तो मैं समझता हूँ कि इन मामलात को बड़ा इसका बगौर जायजा लिया जाए, और जैसे मैंने कहा कि हाफिज नईम साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारे दिल में उनका बहुत एहतराम है, बड़ा अदब है। तो इन मामलात को बैठ के तय किया जाए और टेबल पे बैठ के तय करें। ये जो सड़क पे धरना देना, सड़कें ब्लॉक करना, उसमें एक हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जानो माल को जो नुकसान लोग पहुंचाते हैं, तकरीबकारी करते हैं या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, वो मुनासिब नहीं है। और शहरियों का क्या कसूर है कि उनकी जिंदगी में क्यों खलल डले इस तरह। उस्मान जुबैर साहब। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिसका वजाला केपी बार बार वफाक को चैलेंज हुई है, उससे वफाक की सहूलियत को क्या नुकसान पहुंच सकता है, वफाक को क्या पहुंच सकता है। और दूसरा मामला हमारी बहन जो हमारी साहिबा जी को जारी रिव्यू का जी मामला, उसके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, तो उसमें अभी तक हुकूमत की क्या पेशरफ्त है सर, कौन लोग इसमें मुलविस हैं? देखिए वो बंदा हमने ट्रेस कर लिया, अजमा बुखारी साहिबा की वीडियो वाला। मैं वो तफसीलात अभी नहीं बताना चाहता, तहकीकाती इदारे जो हैं वो उसके ताकुब में हैं, और उसका नाम, बल्दियत, पता, सब चीज़ें जो हैं वो ट्रेस कर ली गई हैं। और वो खातून का अकाउंट बना के पीटीआई का एक कारकुन ये काम कर रहा था, और वो मर्द था जिसने ये काम किया, और अब तस्वीर और अकाउंट खातून के नाम से चला रहा था। तो उसमें खासी पेशरफ्त हुई है, हमारी खवातीन ने जिस पे बात की है। देखिए केपी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक थ्रेट या जो मामलात किए जाते हैं वो उनके सियासी बयान है, और वो बैठ के ये अमीर मकाम साहब इस पे बात करेंगे। ये आपने बात करनी कि विफाक को क्या थ्रेट है, तो ये कोई नई बात नहीं है। वही हमने 2013-14 के वो कर 120 दिन का भी देखा है कि वो आते हैं विफाकी हुकूमत खत्म हो जाए। विफाकी हुकूमत तो खत्म नहीं हुआ, अलबत्ता इस मुल्क को जरूर नुकसान पहुंचा, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो नुकसान आपको पता है कि चाइना की सदर का दौरा और दूसरे इशूज और सी पैक का डिले होना और लोगों को यहाँ पार्लियामेंट पर हमला करना और पीटीवी पर हमला करना और सारे मुल्क और खारकर इस्लामाबाद को बुला करना, ये जरूर हुआ। उनका वही वही ख्वाहिश इससे नहीं हुआ पूरा कि उनके थ्रेट से, उनके आने से कोई चेंज। फिर उसके बाद भी आपको पता है वही से जो परवेज खटक साहब उसी टाइम चीफ मिनिस्टर थे कि इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे वही, और इसके बाद आपने 9 मई के भी देख लिया। तो ये मतलब है कि विफाक कायम दायम रहेगा, मगर वो अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो पूरे मुल्क को पहुंचा रहा है। उनके साथ जो लोग ये पीटीआई के उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी और पाकिस्तान के शहरी है। ये बात हम पता उनकी इसी तरह हथकंडों से और रवैये से जरूर हुआ कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचा। उनसे ये बर्दाश्त, ये जो कुछ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, डॉलर आ रहे हैं, इस IFC को आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर है सी पे का दोबारा रिवाइवल की, ये दोबारा शुरू हो जाए, कई और चीजें, तो उनसे वही चीजें हजम नहीं हो रही। उसको जरूर हर एक चीज को वो जो कुछ करता है तो उसका नुकसान हुआ कि पाकिस्तान को, अवाम को पहुंच जाए। और वो बार बार अमरीका की बात करते, तो आज मैंने तकरीर में सुना, तो मैं फिर ये बात करता हूँ कि पहले उसका हिसाब दे, और साथ साथ अमरीका की अगर आप बात करते हैं तो वो साइफर भी आपने वही अमरीका में साजिश करके ले रहा है, वो भी आपके साथ। और अभी अमरीकी कांग्रेस से और उससे पाकिस्तान की के खिलाफ और उसके हक में अगर बयान है तो आप ही के लोग हैं, या आप कह सकते हैं उसको उनका पता भी है जो उनके अंदर का बंदा है जो सामने आ जाए। अब भी सामने है, पहले माजूरी से हमला चाहता है। अच्छा तारिक साहब, आज आपके सियासी को इस्लामाबाद के अंदर जुलूस करने की रैली निकालने की इजाजत नहीं मिली। इस्लामाबाद में पीर के रोज में रैली निकालने की इजाजत दी है, क्या कहता है? देखिए बात ये है
کہ جو भूख हड़ताल लंच के बाद शुरू हो और डिनर से पहले खत्म हो जाए, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। ना बंदे इकट्ठे हुए और लाहौर के अपोजिशन लीडर कह रहे थे पंजाब वाले कि हमारे भूख हड़ताली कैंप में खाने पीने का सामान नहीं जाने दिया जा रहा, हमारा सामान रोक लिया उन्होंने। मेरे साथ एक शो पे भी लतीफ खोसा साहब थे, तो कॉफी ऑर्डर की, तो मैंने कहा ये क्या, उन्होंने कहा जी वो खाने पे पाबंदी है, पीने पे नहीं है। तो मैं अब क्या कह सकता हूँ इनको कि बंदे इकट्ठे होते नहीं है, खा पी रहे हैं, अंदर पार्लियामेंट में जाके कैफेटेरिया में खाना खा रहे होते हैं। तो ये तो अपने लीडर के साथ इनसिंसियरिटी है ना, कि जिसने कहा भूख हड़ताल करो, तो ना भूख है ना हड़ताल है।